Shanti Bhushan has come out today and praised Kiran Bedi. Let's in fact take you through what Shanti Bhushan has said vis-a-vis Kiran Bedi and Arvind Kejriwal. It is definitely a master stroke by the BJP because it's a success of the Anna Andolan. Anna Andolan was a big movement against corruption in the country, and Arvind and Kiran Bedi both were parties to the movement like myself, because all the meetings at that time used to take place in my house. I have seen them, known them intimately since then. So it is definitely a master stroke by the BJP to project, because people want somebody to be chief minister who has an honest image. And if a person who has been a crusader against corruption becomes chief minister, people should be happy. So the last time you spoke to Times Now, I remember you called Arvind Kejriwal literally a dictator. Now that one of his close associates is also his contender, who do you now choose? Who do you think is now going? Do you think Kiran Bedi would make a better chief minister for Delhi? Perhaps she would make a much better chief minister for Delhi, because we are hearing so many things today against Arvind, his dictatorial style, because even in the distribution of tickets, he has given preference to winnability against image. And even though many candidates were being opposed by other important members of the committee, still he insisted on the ground of winnability that it is such people who win elections. People who came from other parties on the last moment, during a few days before the election, they were given tickets on the ground, I hear, they were given tickets on the ground of winnability, that such candidates win. I am strongly opposed to any such compromises with our main objective. So after Shanti Bhushan put out that praise for Dr. Kiran Bedi, this is how she is reacting to that statement. शांति भूषण जी ने आपकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जैसे केजरीवाल अच्छे सीएम हो सकते हैं दिल्ली के लिए, उस तरह किरण बेदी भी अच्छी सीएम हो सकते हैं दिल्ली के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। Cracks emerge now in the party. The Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas says that there is no point in making such statements behind closed doors. He's also questioning the timing of the statement. Let's listen into how Kumar Vishwas is reacting. Joining me from the Aam Aadmi Party, Kumar Vishwas. Vishwas, सबसे पहले सुबह जो बात आई, शांति भूषण ने हमसे बात करी और उन्होंने ये बोला है that किरण बेदी will make a better CM. अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर है, बल्कि अगर किरण बेदी आम आदमी पार्टी से सीएम कैंडिडेट होती तो वो ज्यादा अच्छा रहता फॉर सोसाइटी फॉर अन्ना रेवोल्यूशन. आपका क्या व्यू है? देखिए, बिल्कुल शांति भूषण जी देश के वरिष्ठ वकील हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी आवाज है. हालांकि वो पार्टी के सदस्य नहीं है, पार्टी के किसी पद पर नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की राय बहुत महत्वपूर्ण है. जहां तक उन्होंने ये सुझाव दिया कि किरण बेदी जी अगर हमारी सीएम कैंडिडेट होती, तो शायद उनको याद नहीं है कि जब ये पार्टी बनी ही थी तभी हम उनके पास गए थे और हमने उनसे कहा था कि आप ये ज्वाइन करें हमारा मूवमेंट, आप ही लीड करती रही हैं. उन्होंने कहा मुझे जीवन में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना. और उन्होंने अन्ना हजारे जी को भी इस बात के लिए प्रसन्न करने की कोशिश की, उन्होंने जनरल वीके सिंह ने, कि हम लोग पार्टी गलत बना रहे हैं. लेकिन आज वीके सिंह जी का वहां जाकर मंत्री बनना और किरण बेदी जी का चीफ मिनिस्टरशिप के लिए आगे आना कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन था, उसे इन दोनों लोगों ने इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस और प्रो बीजेपी बनाने की कोशिश की थी. उस समय कुछ और ताकतें भी, धार्मिक ताकतें भी लगी हुई थी जो इसे भाजपा मय बनाना चाहती थी, जिनमें स्वामी जी और बाकी कुछ लोग सम्मिलित थे. हमारा कहना है कि हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस से है ही नहीं, हमारी लड़ाई करप्शन से है. लोकपाल ना वो बनाते थे ना ये बनाते हैं, तो वो तो प्रश्न वहां समाप्त हो गया. बाकी एक सामान्य नागरिक और मतदाता की तरह उनकी राय हमारे लिए उसी तरह आदर रखती है जैसे किसी भी व्यक्ति की आदर राय रखती है. लेकिन एमसीडी में जो भयंकर भ्रष्टाचार है, जो भाजपा शासित एमसीडी है, उसको देखते हुए भी अगर कोई ऐसा सोच सकता है कि भाजपा भ्रष्टाचार हटा सकती है या सुशासन दे सकती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो सोच सही नहीं है. क्या शांति भूषण के व्यू से आप वैसे अग्री करते हैं, या जब वो ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी में होती किरण बेदी
तो शायद वो एक बेटर कैंडिडेट रहती। चुनाव से 15 दिन पहले इस तरह के जो हाइपोथेटिकल सोच हैं उनमें मेरा कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं ये मानता हूं, मुझे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी मेरे लिए इशू नहीं है। मेरे लिए इशू ये है कि दामिनी के बाद जब जस्टिस वर्मा ने ये कहा कि जिनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के मुकदमे संज्ञान में ले लिए हो कोर्ट ने, ऐसे लोगों को आप सदनों में मत लाइए, तो सारी पार्टियां इकट्ठी क्यों हो गई? किरण बेदी जी ने खुद 7-8 महीने पहले यह पूछा कि जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब न देती हो ऐसी पार्टियों को वोट देना देश के साथ गद्दारी है। तो आज वो देश के साथ गद्दारी करने वाली पार्टी के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? लेकिन यही बात मैं आपसे पूछूं कि जस्ट फ्यू डेज बिफोर इलेक्शंस ऐसा स्टेटमेंट देना, डोंट यू थिंक, एंड कमिंग फ्रॉम शांति भूषण, एक सीनियर मेंबर रहे हैं, कैन बैकफायर फॉर योर पार्टी, या एक इमेज के हिसाब से ठीक नहीं बैठ? देखिए, दो तरह की राजनीति दिल्ली में होती है। एक होती है बड़े ड्राइंग रूम्स में बैठकर राजनीति होती है जिसमें ये बेटर हो सकता है, ये बेटर हो सकता है, जो आपके चैनल के विमर्श का विषय है। एक राजनीति होती है झुग्गी में, सड़क पर, कि पानी किसने दिया था? केजरीवाल ने। बिजली के बिल किसने आधे किए थे? केजरीवाल ने। आरटीओ के दफ्तर में दलाली कब बंद हुई थी? जब केजरीवाल आया था जी, तब बंद हो गई थी। तो वो दिल्ली इकट्ठी हो गई है, वो गुड गवर्नेंस। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग इस समय बीजेपी को हराने में लगा हुआ है। उनको लग रहा है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले कोई व्यक्ति आया, वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है और वो थानेदार की तरह बात कर रहा है, और उनके एक सांसद ने मुखर होकर इस बात को कहा भी, उसके बाद उसे डांटा गया। तो वो सारे लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इतना समय काम किया था। और एक जो दिल्ली का बेनिफिशियरी क्लास है वो ये सोचता है कि उसका हित इसी में है कि आम आदमी पार्टी का शासन आए और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पहली करप्शन मुक्त गवर्नमेंट दिल्ली को देखने को मिले। अच्छा, एक चीज बताइए, जब किरण बेदी का अनाउंस हुआ था कैंडिडेचर, तो आपने कुछ शब्द यूज किए थे जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गए थे। डू यू स्टैंड बाय दोज वर्ड्स? डू यू स्टैंड बाय द स्टेटमेंट्स दैट यू मेड, एंड डू यू थिंक दैट उनके कैंडिडेट बनने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है? क्योंकि फैक्ट इज वो गेम चेंजर हो सकती है आपकी पार्टी के लिए, चाहे आप अग्री ना भी करें तो। देखिए, मैंने जो कविता कही थी, अब समस्या यह है कि मेरी कविता का जो आकलन है, उसकी समीक्षा है, वो पत्रकार करते हैं जिनका कविता से ज्यादा सरोकार नहीं है या कम सरोकार है। मैंने जो 2 पंक्तियां उद्धृत की थी, मैं उन पर आज भी कायम हूं, और मुझे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले यह विमर्श को बदलने की कोशिश है। विमर्श अब भी वही है कि दिल्ली में सुशासन कैसे आएगा, बिजली के बिल आधे कैसे होंगे। आज उन्होंने विज्ञापन दिया भाजपा ने, हम बिजली के बिल आधे कर देंगे, कैसे? नीचे एलईडी बल्ब लगा के। ये तो चोरी है, ये तो मिसलीडिंग है। ये तो ऊपर विज्ञापन कुछ और है, नीचे कुछ और दे रहे हैं। एलईडी बल्ब लगा के आधे बिजली के बिल हो जाएंगे। आप ये कहिए कि बिजली की कंपनी अंबानी जी की है, हम उसे कहेंगे कि आप गलत पैसा ले रहे हैं, आप आधा पैसा लीजिए। और ये अरविंद ने करके दिखाया, एफआईआर करके दिखाई, बिजली के बिल आधे। अगर केजरीवाल डिक्टेटर हैं जो शांति भूषण बोलते हैं, तो किरण बेदी आपके हिसाब से फिर आप उनको, वो भी तो काफी, शी इज बीन नोन टू बी अ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, तो आपको लगता नहीं है कि अगर वो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो तो ज्यादा जरूरी है देन अ डिक्टेटर केजरीवाल? मेरे लिए ना तो मुझे अरविंद केजरीवाल से कोई रिश्तेदारी करनी और ना मुझे किरण बेदी जी से कोई किसी तरह की रिश्तेदारी करनी। मुझे तो ये लोग आंदोलन में ही मिले थे और मैं तो उसी आंदोलन पे आज तक खड़ा हूं, उसी रामलीला मैदान में आज भी खड़ा हूं कि भैया। किरण बेदी ने, मुझे याद है, साथ में एक कंट्रोवर्सी करी थी जब बोला गया बड़ा ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है, वो चुन्नी वुन्नी निकाली थी, तो वो भाजपा के लोगों से नाराज थी। नीचे अनंत कुमार जी बैठे हुए थे, केंद्र में मंत्री हैं, और उन्हीं के खिलाफ वो बोल रही थी कि ये लोग आते हैं, मुखौटा बना के आते हैं, चीजें बना के आते हैं। दामिनी कांड पर उन्होंने ट्वीट किया था कि जो लोग महिलाओं के आरोपित व्यक्तियों को सदनों में ले जाते हो, ऐसे लोग इस देश की मां बेटियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज उनकी कैबिनेट में, जिस सरकार में वो हैं, क्या ऐसे मंत्री नहीं बैठे हुए हैं? क्या ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बैठे हुए जिन्होंने कहा कि जींस पहनने वाली लड़कियों के साथ ज्यादा छेड़खानी होती है? एक प्रदेश में मुख्यमंत्री है, क्या उनकी बात सही हो गई? क्या उन्होंने वो स्टेटमेंट इंडोर्स कर लिया? क्या साक्षी महाराज के 4 बच्चे पैदा करने के स्टेटमेंट को किरण बेदी इंडोर्स करती हैं? वो कहती है छोटी बातें, यही तो बड़ी बातें हैं, यही तुम। आज सवाल ये नहीं है कि किरण जी व्यक्तिगत रूप से अच्छी हैं, बुरी हैं, इस पे अलग अलग लोगों की राय हो सकती है। आज सवाल ये है कि वो किन शक्तियों के साथ खड़ी हैं। आज सवाल ये नहीं है कि उन्हें प्रशासक के रूप में क्या अनुभव है। आज सवाल ये है कि दिल्ली के लिए उनके पास क्या एजेंडा है। आज सवाल ये नहीं है कि किसी एक संगठन के बारे में वो क्या ओपिनियन देती हैं। सवाल ये है कि इस देश में जो बड़ी लड़ाई है, विकल्प और राजनीति की लड़ाई, उसकी आशा के साथ कौन खड़ा है। बुजुर्गों से जुबान लड़ाना अच्छी चीज नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शांति भूषण जी का जो असेसमेंट है, जो मूल्यांकन उन्होंने किया है, जिस समय पे किया है, उससे मैं तो सहमत नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से प्रशांत जी भी सहमत नहीं हो सकते।
आम आदमी पार्टी सहमत नहीं हो सकती।